Now, the chapter of analytical chemistry is based on the identification or the process of identifying cations and anions. ठीक है? Using known observations. So there are certain observations जो हम लोग को मालूम है कि ये होने पे ऐसा होगा. So when we see an observation that is based on what we already know, we are able to identify whether the compound contains a certain cation or not. ठीक है? So हम लोग का बहुत सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है. So we are not going to go into the deeper parts. Okay, just look at this. Process 1. Adding NaOH to the given compounds. And identifying the cation based on the precipitate when a NaOH is added in normal quantities and B NaOH is added in excess. ठीक है? So हम लोग क्या करें, NaOH ले रहे हैं, कंपाउंड में ऐड कर रहे हैं, पहले नॉर्मल क्वांटिटी में ऐड कर रहे हैं, और जब वो रिएक्शन हो जा रहा है, हमको एक सर्टेन प्रेसिपिटेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, जो भी है, उसके बाद उसमें हम लोग NaOH और एक्स्ट्रा करके ऐड करेंगे, एंड देन विल सी दी ऑब्जर्वेशन. सो नंबर 1, कैल्शियम. सो लेट्स से कैल्शियम का एक कंपाउंड है हमारे पास, उसको हम लोग रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ. इट विल गिव अस sodium nitrate, which is not important for us, but what is important that it's going to give us calcium hydroxide, which is a precipitate. Precipitate का symbol ये है, correct? This precipitate is white in color. This precipitate is white in color. Number 2, magnesium. मैग्नीशियम का एक सॉल्ट है हमारे पास, उसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं. It is going to give us sodium chloride and magnesium hydroxide, which is again a precipitate. This salt is although white, but it is dull white in color, a little different white. Next, iron. We have another salt of iron. In this case, this is iron 2, which we react with NaOH, which gives us sodium sulfate, and very importantly, it gives us iron hydroxide or iron 2 hydroxide, which is dirty green in color. It is dirty green in color. This is also a precipitate here. ठीक है? अगला वाला है iron, but ये 3 है, वैलेंसी इसका 3 है. So let's say we have iron chloride. iron chloride को हम लोग NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं. जस्ट अ मिनट. सो ये हमको देगा सोडियम क्लोराइड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इज गोइंग टू गिव अस iron 3 हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड. ये फेरस हाइड्रोक्साइड है, ये हमको फेरिक हाइड्रोक्साइड देगा.
This is reddish brown in color. ये precipitate का color reddish brown है. Clear? जिंक सल्फेट है हमारे पास, NaOH देते हैं. It gives us sodium sulfate, zinc hydroxide, which is a precipitate. Again, zinc is white in color, but this is gelatinous white in color. थोड़ा जेली टाइप का लगेगा. ठीक है. Now these are all observations made when this is in normal quantities. NaOH is in normal quantities. What happens when we add NaOH in excess quantities? जब हम लोग excess quantity में add करते हैं, precipitate, कैल्शियम के केस में precipitate is slightly soluble. यानी जब आप एक्सेस करेंगे तो थोड़ा सा precipitate डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है. You know what is a precipitate, right? It will never mix with the liquid. It will always settle down. Correct? That's a precipitate. मैग्नीशियम का जो प्रेसिपिटेट आता है, इट इज इनसोल्यूबल. ये डिसॉल्व नहीं करेगा. ज्यादा NaOH भी देंगे तो डिसॉल्व नहीं करेगा. आयन का प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल. आयन 3 का प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल. डर्टी ग्रीन रहेगा तो डर्टी ग्रीन ही प्रेसिपिटेट रह जाता है, रेडिश ब्राउन ही प्रेसिपिटेट रह जाता है. ठीक है. एंड जिंक का जो है प्रेसिपिटेट, इट डिसॉल्व्स टू गिव colorless solution. ठीक है. क्लियर? यानी हमने थोड़ा क्वांटिटी में दिया तो हमको जिंक हाइड्रोक्साइड दिया, विच इज अ व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट, एंड देन जब एक्सेस में दे दिया तो वो डिसॉल्व कर गया. नाउ आउट ऑफ द 3 व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, एक डिसॉल्व कर जाता है, बाकी 2 उतना डिसॉल्व नहीं करता. एक उतना नहीं करता, एक नहीं करता है, और उसमें हम लोग को डिफरेंस समझ में नहीं आता. बट व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इज कि अगर मेरे पास जिंक का है प्रेसिपिटेट, जिंक हाइड्रोक्साइड है व्हाइट कलर का, तो उसमें मेरा जिंक हाइड्रोक्साइड विल डिसॉल्व व्हेन वी ऐड एक्सेस ऑफ NaOH. क्लियर? प्लीज कॉपी. So these are some salts that we can see on the screen. ठीक है. ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये है आयन हाइड्रोक्साइड. ठीक है. ये हाइड्रोक्साइड है, मतलब ये प्रेसिपिटेट बनने के बाद उससे पानी को ड्राई आउट करके हम उसको ड्राई करके बाहर निकाल के दिखा रहे हैं. ठीक है. सो नाउ लुक एट माय ऑब्जर्वेशन. मैग्नीशियम डल व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है एंड ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है. ठीक है. ऑल्दो आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है यहाँ, यू माइट फाइंड द राइट वन टू बी मोर व्हाइट, बट यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस. फोटो खींचने में थोड़ा डिफरेंस हुआ है. द पिक्चर हैज बीन टेकन लिटिल डिफरेंटली, बट you can see there's a difference in the color. Correct? Yes. So white तो है, but different type of white है. So that is a differentiating factor in identification of such precipitates. ठीक है. ये है dirty green precipitate. This is iron hydroxide. क्या ये है iron hydroxide. Do you understand? So you can, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये डिफरेंसेस नजर आएगा. ये सारा डिफरेंसेस आपको नजर आता है. ठीक है. एंड देन यू आइडेंटिफाई, बट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई जस्ट बाय यूजिंग NaOH. सो वी नीड टू यूज अनदर अल्कली. ठीक है. सो केमिस्ट्री इज मोर अबाउट कलर्स. सो लेट्स सी द कलर्स. कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, जिंक आयन है, lead iron है. Now why have we written these values? Because they are all white.
Calcium is white. Magnesium is dull white. Zinc is gelatinous white. And lead is chalky white. So many shades of white. ठीक है? Now, अगर हम लोग NaOH देंगे, ठीक है, एक्सेस में, क्योंकि हम लोग जब NaOH देते हैं तो हमको ये प्रेसिपिटेट्स मिलता है. कोई भी सॉल्ट रहे हमको क्या मिलेगा, ये प्रेसिपिटेट्स मिल जाएगा. सो वी ऑलरेडी हैव द प्रेसिपिटेट. अब हम क्या करें, प्रेसिपिटेट को लेकर एक्सेस ऑफ NaOH दे रहे हैं. एक्सेस ऑफ NaOH में कैल्शियम का प्रेसिपिटेट स्लाइटली डिसॉल्व करेगा. हम लोग देखा मैग्नीशियम का डज नॉट डिसॉल्व. जिंक गिव्स कलरलेस सॉल्यूशन. lead gives colorless solution. That's a problem because दो डिसॉल्व नहीं कर रहा था, यहां दो डिसॉल्व नहीं कर रहा था, एक कर रहा था, एटलीस्ट एक तो आइडेंटिफाई कर सकते थे हम लोग. बट यहां हम लोग का वो भी कॉन्सेप्ट उड़ गया. यानी अब हम एक्सेस ऑफ NaOH देंगे तो डिसॉल्व अब यहां दो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व कर जा रहा है. सो आई कैन नॉट इवन डिफरेंशिएट कि अगर डिसॉल्व कर रहा है तो कौन सा है ये. सो आपको एलिमिनेट करना होगा. एंड फॉर दैट, ये एलिमिनेशन के लिए हमको एक डिफरेंट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन लाना होगा. ठीक है, एंड वो है एडिंग NH4OH. ठीक है, when we add NH4OH to a salt of calcium or maybe magnesium or maybe zinc or maybe lead, तो उस टाइम किस तरह का प्रेसिपिटेट मिलेगा. यहां कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, कैल्शियम रिएक्शन ही नहीं करेगा. सो नाउ इमेजिन कि आपको एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला है सोडियम हाइड्रोक्साइड डालकर, बट जब आप उसी कंपाउंड में आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है. मतलब वी हैव कैल्शियम इन द कंपाउंड. यू हैव सम कंपाउंड कैल्शियम X. आई डोंट नो X क्या, आई डोंट इवन केयर X क्या है. उसमें आप NaOH डाल रहे हैं तो आपको मिल रहा है सोडियम X एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है. जब एक्सेस में दे रहे हैं तो वो डिसॉल्व हल्का सा कर रहा है, बट जब यही चीज को चेंज करके NH4OH करे, देयर इज नो रिएक्शन. इसका मतलब है अ कंपाउंड which reacting with NaOH gives you a white precipitate but does not react with NH4OH is a calcium containing compound. It is a compound that has calcium. ये है एनालिटिकल केमिस्ट्री. ऑब्जर्वेशन से हम लोग क्या निकाले, एनालाइज कर रहे हैं कि कंपाउंड में कटायन क्या है, पॉजिटिव रेडिकल क्या है उसके अंदर. समझ में आ रहा ना. 4 व्हाइट है, उसमें से एक हमको अभी आइडेंटिफाई हो गया, रिएक्शन नहीं है, मतलब वो कैल्शियम होगा. NH4OH के साथ अगर रिएक्शन नहीं कर रहा है तो वो कैल्शियम होगा. NH4OH के साथ अगर मैग्नीशियम का कोई सॉल्ट रिएक्ट करता है तो वो डल व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, विच इज कंप्लीटली ओके. MgOH whole twice is a dull white precipitate. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड NaOH लेकर बनाओ या NH4OH लेकर बनाओ, बनेगा तो MgOH whole twice. ये सुनो, तो MgOH whole twice का अलग कलर नहीं आएगा अलग कंपाउंड यूज करने से. समझ में आया बात. जिंक के साथ इट विल गिव अस अ जेलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब रिएक्शन हो रहा है. लेड के साथ इट विल गिव यू अ चॉकी व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब यहां भी रिएक्शन हो रहा है. मतलब अभी तक हम लोग बाकी तीनों में सेग्रीगेशन करना डिफिकल्ट है. बट लेट अस सी excess of NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब हम लोग प्रेसिपिटेट में ज्यादा करके डालते हैं, ये तो कुछ नहीं करेगा बिकॉज ये तो पहले ही रिएक्शन नहीं, देयर इज नो प्रेसिपिटेट देयर. तो उसके एक्सेस में डालने के बाद भी कुछ नहीं होता है. एक्सेस में ये इनसॉल्युबल है.
आउट ऑफ द टू दैट डज नॉट डिसॉल्व और स्लाइटली डिसॉल्व्स, एक NH4OH के साथ रिएक्शन करता ही नहीं, दूसरा प्रेसिपिटेट देता है, तो एक्सेस में और कुछ नहीं होता है. सो दैट इज अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शंस. ठीक है, तो अगर हम लोग चारों ऑब्जर्वेशन को देखेंगे ना, चारों ऑब्जर्वेशन इन ईच केस ऑफ ईच कटायन आपको चार यूनिक सिचुएशंस मिलेगा. लेट अस सी. दिस इज गोइंग टू गिव अस अ कलरलेस सॉल्यूशन. And this is going to give us nothing. It is insoluble. Now look at the combinations. What are we talking about? White slightly dissolve, no reaction. White does not dissolve, white does not dissolve. Insoluble, है ना? White dissolves, white dissolves. White dissolves, white does not dissolve. There are four white precipitates, each with four unique set of reactions with NaOH and NaOH in excess, NH4OH and NH4OH in excess. Completely unique. Lead white precipitate देता है NaOH के साथ, excess NaOH के साथ solution colorless हो जाता है. सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, NH4OH का एक्सेस के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है. ऐसा कोई और व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट नहीं करेगा. चेक कर लो. Do you understand? So if the question comes, identify, question बोलता है identify the cation which gives a white precipitate and dissolves in excess of both NH4OH and NaOH, तो आप बोलोगे क्या कि ये जिंक है. अगर आपको बोले which gives a white precipitate and dissolves in excess of NaOH, तो आप दोनों आंसर दे सकते हो, दोनों में से कोई भी एक चलेगा. ऑप्शन तो दो आ रहा है ना, क्योंकि सिर्फ NaOH बोला है. तो अगर दो ऑप्शन दे रहा है NaOH के साथ, तो दोनों में से कोई भी एक लिखो, मार्क्स मिल जाएगा. बट अगर वहां आपको NH4OH भी ऐड कर देगा, बोलेगा कि व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है NH4OH के साथ कुछ नहीं करता एक्सेस में, तो आप क्या बोलोगे? आंसर मेरा लेड. डू यू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज वर्किंग? डू यू अंडरस्टैंड? सो आवर जॉब हियर इज टू आइडेंटिफाई ये चार में कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है, और यही चार में प्रॉब्लम होता है, बिकॉज बाकी का कलर आपको पता है, डर्टी ग्रीन, रेडिश ब्राउन. समझ में आया मेरा बात? बाकी का हम लोग को पता ही रहता है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर? सो आपको समझना क्या रहता है. डर्टी ग्रीन रहेगा आयरन 2 है, रेडिश ब्राउन रहा आयरन 3 है. वेरी इजी. प्रॉब्लम किस में? ये चार में सब व्हाइट है. तो व्हाइट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक NH4OH के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, बाकी तीनों करता है. बाकी तीनों में दो एक्सेस में डिसॉल्व नहीं करता है, और जो दो एक्सेस में डिसॉल्व नहीं करता है उसमें से एक एक्सेस ऑफ NaOH में भी डिसॉल्व नहीं करता, एंड दैट इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम दोनों सोल्यूशन का, दोनों एल्कली का एक्सेस में डिसॉल्व करता ही नहीं है. लेड सोडियम हाइड्रोक्साइड में करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में नहीं करता है. जिंक दोनों में डिसॉल्व करता है, कलरलेस देता है. कैल्शियम सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है. समझ में आ गया बात? समझ में आया बात कैसे करना है ये? सो आपका ये चैप्टर में है क्या? यही चार है, बाकी आप याद कर लोगे, बाकी सब सेम रिएक्शन देगा. अगर हम लोग बनाएंगे ना, जब ये चार्ट जब बनेगा, तो यू विल फाइंड कि कॉपर का या किसी का यू गेट द सेम काइंड ऑफ अ रिएक्शन. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कॉपर का रहे या जो भी रहे, यू विल गेट द सेम काइंड ऑफ रिएक्शन बोथ इन NaOH एंड NH4OH, क्योंकि प्रेसिपिटेट का कलर यूनिक हो जाता है. कॉपर का प्रेसिपिटेट का कलर ब्लू है. तो अगर हमको पता चल जाएगा कि ब्लू प्रेसिपिटेट आ रहा है, बाकी में तो ब्लू है ही नहीं, तो हम लोग कंफ्यूज होंगे क्या? बट अगर हमको व्हाइट बोलेगा, तो व्हाइट में चार है, चारों में से हमको फिर यूनिक ट्रेड्स चेक करना पड़ता है.
And this is where organic analytical chemistry is very important. इसी के पास यही पार्ट, दिस इज द ओनली स्लाइड दैट मैटर्स इन दिस चैप्टर, बिकॉज इसमें आपको दिमाग लगाना। बाकी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको आयरन ट्यूब देगा, आप लोग क्या बोलेंगे, डर्टी ग्रीन, है ना, डर्टी ग्रीन, डर्टी ग्रीन, ये हो जाएगा रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। समझ में आ रहा मेरा बात? कलर से ही समझ में आ जाएगा। बट कैल्शियम रहे, जिंक रहे, लेड रहे या मैग्नीशियम रहे, they all give us white precipitates in both cases, not here. In most of the cases. So then the question becomes कि कौन कलरलेस सोल्यूशन देता है, ये देता है और ये देता है, दोनों में जिंक देता है, एक में लेड देता है, मैग्नीशियम दोनों में नहीं देता है। ये में लाइक ठीक है, डिसॉल्व कर जाता है हल्का फुल्का, यहां कुछ नहीं होगा। समझ में आया मेरा बात? ये भी इनसॉल्युबल है ना? समझ में आ गया? इजी, प्लीज कॉपी। Okay, so when treated with NaOH in excess, dirty green है insoluble, excess of NaOH में भी, excess of NH4OH में भी। Reddish brown है, reddish brown is again insoluble in NaOH, insoluble in NH4OH। Blue है, blue is insoluble in NaOH and insoluble, sorry, NH4OH में it gives us a deep blue solution. It gives us a deep blue solution. ठीक है? White में ये insoluble है, so write insoluble. No reaction. ठीक है? कलरलेस सोल्यूशन देता है, ये भी कलरलेस सोल्यूशन देता है। यहां लेड NH4OH NaOH के साथ कलरलेस सोल्यूशन देता है, NH4OH के साथ कोई इफेक्ट नहीं होता है, इट रिमेन्स इनसॉल्युबल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड remains insoluble in excess of NaOH and excess of NH4OH. Are we clear? Please look into this.